Assalamu alaikum, dear students. We have Unit 3 Media and its Impact. मीडिया और इसका असर, इसके अल्फाज मानी और इसकी ट्रांसलेशन आप पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ प्रोसीड होते हैं। Guess the meaning of tutorial. Tutorial means discussion group. What type of information does it provide? Media provides information on every aspect of the life, including sports, health, educational aspects about fashion, current affair, entertainment, etc. Is TV taking away the habit of reading? Yes, TV taking away the habit of reading. Which is your favorite TV program and why? My favorite TV program is Tom and Jerry because I like cartoons. You can add your own favorite TV program और आप उसकी वजह भी बयान कर सकते हैं क्रिएटिविटी के तौर पे। सेकंड हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास वर्ड मीनिंग है, हम इसको कर चुके हुए हैं, मैं रिवाइज कर देती हूँ। इम्पैक्ट का मतलब है पावरफुल इफेक्ट, ईगर फुल ऑफ कीन डिज़ायर, जियर्ड अप रेडी, इंटेग्रल इसेंशियल, एंटरटेन एम्यूज़ किसी को खुश करना, उसको परेशानी से आज़ाद करना। हमारे पास मज़ीद क्वेश्चंस हैं जिसमें है हाउ इम्पोर्टेंट इज़ मीडिया इन आवर लाइफ्स. Media is the most powerful tool of communication. It helps promoting the right things on right time. It gives a real exposure to the mass audience about what is right and what is wrong, like a fire. But on the other side and safe side, it helps a lot to inform us about the realities as well. What is the negative influence? अब हम negative influence को देखते हैं मीडिया के. Media is linked with spreading fake news. Media is responsible for generating negative feelings among those exposed to it. An early exposure to bold or violent films, books publishing adult content, and new portraying ugly social practices have a deep impact on young minds. Now हम क्वेश्चन थर्ड की तरफ देखते हैं. Which news channel is the most popular in Pakistan and why? इसका आंसर देखिए. जियो चैनल इन पाकिस्तान इज मोस्ट फेमस न्यूज़ टीवी चैनल बिकॉज इट प्रोवाइड्स लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ एट्सेट्रा. इसकी जगह पे जो आजकल न्यूज़ चैनल्स हैं आप उसका भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन उस पर अथेंटिसिटी होनी चाहिए. वाई शुड द गवर्नमेंट पुट अ चेक ऑन मीडिया? Government should put a check on media due to spreading before the time without authentic automatic analysis and false news. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रीहेंशन के. समराइज द लेसन विद द हेल्प ऑफ द माइंड मैप. रोल ऑफ मीडिया एंड इम्पैक्ट. इसमें हम पैरा वाइज जो है इसको स्टडी अप करेंगे. आप इसको एक नज़र देख सकते हैं और इसकी रीडिंग भी ले सकते हैं. नाउ हियर आर द क्वेश्चंस. What is the most important function that media performs? Media is performing very constructive functions for society. It raises awareness, शऊर बेदार करता है about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction, and violation of human rights. What are the two major means of communication? बहुत important question है बोर्ड के हिसाब से. The major means of communication are electronic media and the print media. It includes film, radio, television, internet, books, magazines and newspapers. It provides us information as well as entertainment. हमें information भी मिलती है और entertainment भी है, दोनों में, print media में और electronic media में. How does media provide entertainment? Media provides entertainment in various forms such as news, dramas, films, talk shows, documentary programs, current affairs, radio, internet, books, magazines and newspapers. What happened when media is allowed to play its role unchecked? अगर इसको हम unchecked छोड़ दें तो क्या मुसीबतें आ जाएंगी? If media is allowed to play its role unchecked, then the bogus news given in the newspapers and on the TV channels may raise blood pressure, thrilling attitude, and create negative feelings in the mind of audience.
Overexposure to media may cause health problems also. The children learn violence by seeing movies and TV programs. The middle aged persons are stuck up with TV serials and show much interest in raising social status by wasting money. Give three reasons in your sport of your favorite TV program. You can write your own program, लेकिन यहाँ मैं आपकी हेल्प के लिए पढ़ देती हूँ. I like Basme Tariq Aziz show due to following. It provides information. It gives us entertainment. The winner of quiz competition awarded with cash prizes. Locate some books and write their titles in alphabetical order. Animal Farm, Bangedara, लॉर्ड ऑफ द फिलीज, रोमियो एंड जूलियट. इसके अलावा आप और भी अपनी पसंदीदा बुक्स के टाइटल दे सकते हैं एज क्रिएटिविटी, लेकिन आपने वो पढ़ी हुई हों या वो आपके पास हों. हम वोकेबलरी की तरफ प्रोसीड ऑन होते हैं. एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड यूज्ड इन द टेक्स्ट, और फिर हमने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं. जैसे जीयर्ड अप, द एम्प्लॉयज वर जीयर्ड अप फॉर अ हार्ड बैटल विद मैनेजमेंट और वर्किंग आवर्स. आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. ग्लोबल विलेज, द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज. आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग उसके सही हों. A click away due to computer and internet. The world is just a click away. Constructive role. The teacher plays constructive role in students' life. यहाँ आप कह सकते हैं द मदर प्लेस, द फादर प्लेस. आप इसको जो है अपने तौर पे क्रिएटिविटी में ला सकते हैं. रेज अवेयरनेस, वी शुड रेज अवेयरनेस अगेंस्ट डेंगू वायरस. डेंगू वायरस की जगह आप कोविड की वैक्सीन या कोविड की थर्ड फेज या कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. To keep an eye, please keep an eye on the baby, please keep an eye on the children, on the students, on the friends. ये आप अपनी मर्जी से इसको क्रिएटिविटी में कर सकते हैं, यानी कि आप बाउंड नहीं है इसी सेंटेंस के. ये एक एग्जाम्पल है, आप अपने पसंद से लिख सकते हैं. पुट दीज वर्ड्स इन रेलिवेंट कॉलम्स टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच. आपका पहला लेक्चर नाउन्स पे था और आपने प्री बोर्ड में भी ये जो पढ़े हुए हैं. तो हम नाउन में है नेमिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव किसी की खूबी बयान करते हैं, और वर्ब्स ऐड जो के करते हैं वर्ब्स में. नाउन्स में हम आएंगे मीडिया, ऑडियंस, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, इम्पैक्ट, मीन्स. एडजेक्टिव में आएगा फॉल्स, कंस्ट्रक्टिव, करेक्टिव, ग्लोबल. एडवर्ब्स में आएगा ईगरली, लाउडली. ग्रामर के क्वेश्चन में हम करेंगे चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स. नाउन की एक्सरसाइज हम कर चुके हुए हैं. इसमें है डॉक्टर्स आर कंसर्न विद सेफ्टी. इट हैज़ in a state of excitement. Floods often cause large-scale devastation. Positive activity will keep you healthy. Her helplessness was quite obvious. She was in a state of hopelessness. She has the ability required for the job. Have you any justification of this act? आगे हम चलते हैं. आइडेंटिफाई पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंडेफिनेट प्रोनाउंस. ऑलरेडी हमने ग्रामर की हुई है, इसमें हम देखते हैं. माई पोजेसिव प्रोनाउन, nobody was there to rescue the child, reflexive pronoun. Yourself, reflexive pronoun. Nobody, indefinite pronoun. Identify pronoun errors and rewrite the following sentences. स्टूडेंट्स अगर आप इसको नोटबुक में लिख लें तो आपकी रिटर्न प्रैक्टिस होगी. मीडिया प्लेस अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी. अंडरलाइन द वर्ड इट. ये प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है. सेकेंड, आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेविंग द मीडिया plays a positive role and has a corrective impact if it, underline the word, it works honestly. In the third sentence, the word is underlined you. And complete these sentences choosing the right option. Here is media plays, media has, have की जगह has. I am happy that all of you have. Their feelings and opinions are, is नहीं होगा are.
Film, radio, television, the internet, books, magazines and newspapers provide, provides नहीं होगा, present indefinite में plural के साथ SES नहीं आता. We proceed onward. The change of voice. Here are active voice. Media helps people to share knowledge. People are helped by media to share knowledge. Their feelings and opinions are expressed through it. It expresses their feelings and opinions. Third sentence. Media attracts the attention of a large audience. Specifies me. The attention of a very large audience is attracted by the media. 4 में हम जाएंगे. After entering the house, we switched on the television. 4 में आएगा, the television is switched on by us after entering the house. Fifth and last sentence, it not only informs us but also entertains us. बड़ा important फिक्रा है. We are not only informed but also entertained by it. Now जैसे कि हम ग्रामर की रिवीजन कर चुके हैं, तो चेंज द पैराग्राफ इनटू पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. मीडिया हेल्प्स, यहाँ आएगा मीडिया हेल्प्ड पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर की जगह आएगा वर, एक्सप्रेस्ड थ्रू दैट. मीडिया attracts की जगह आएगा attracted, second form of the verb, the attention of a very large audience. अब आगे है सवाल देखेंगे. have you noticed, इसकी जगह आएगा had you noticed. हमने इसको past में चेंज कर देना है. had you noticed that the first thing that we did soon after entering the house was to switch on the television. पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. इसमें कॉमा, फुल स्टॉप और आप देखें पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, हम उनको इधर ऑब्जर्व करते हैं. देयर में देखें टी इज स्मॉल, बट पंक्चुएशन में हम फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस विल बी इन कैपिटल. ये स्टूडेंट्स बहुत गलती होती है, इसको गौर कर लीजिए. देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के बाद कॉमा है. इलेक्ट्रिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, इसके बाद फुल स्टॉप है. मीडिया के बाद हमने फिक्रे को कंप्लीट करना है. द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म कॉमा, रेडियो कॉमा, टेलीविजन कॉमा, इंटरनेट कॉमा, बुक्स कॉमा, मैगजीन्स. इसके बाद कॉमा नहीं आएगा, लास्ट वाले न्यूज़पेपर से पहले एंड आएगा और उसके बाद फुल स्टॉप ऐड हो जाएगा. इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, यहाँ फुल स्टॉप होगा. Now we proceed on. Write a paragraph on use and abuses of internet mobile phones. ये आप अपने तौर पे क्रिएटिविटी में भी लिख सकते हैं कि मोबाइल और इंटरनेट के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं. ये आप खुद से एक्टिविटी करेंगे, आपके सामने भी है, आप इसकी पिक्चर लेके इसको स्टडी करके इसकी क्रिएटिविटी कर लेते हैं. फर्दर हमारे पास दूसरा है यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन के बाद राइट एन एसे ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविज़न. वर्ड्स लिमिट है हमारे पास 200. इसको भी हम अपने तौर पे क्रिएटिविटी के तौर पे कर सकते हैं कि टेलीविज़न के फ़ायदे क्या हैं और टेलीविज़न के नुकसानात क्या हैं. यहाँ मैं आपके स्क्रीनशॉट के लिए इसको थोड़ी देर रोक लेती हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं. यू विल ऐड कोटेशंस इन इट एज यू लाइक. दिस इज़ द मेथड स्टूडेंट्स कि हमने कैसे इंट्रोडक्शन देना है, बॉडी पैराग्राफ देनी है, बॉडी पैराग्राफ की डिटेल्स करेंगे, हम पैराग्राफ्स की सूरत में लिखेंगे ऐसे को, और आखिर में कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा जिसमें कि हम सम अप एंड मेक फाइनल कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट. ये लास्ट वन हमने मेथड जो है ऐसे लिखते हुए फॉलो अप करना है, जैसे इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, present and advantages of television, present advantages of television, and at the last para we will sum up. Now एक और एक्टिविटी है हमारे पास, वो है राइटिंग ईमेल्स. ईमेल हमारे पास लेटेस्ट मेल का फास्ट जरिया है. इसके लिए एक सैम्पल आपके पास है, इसमें आप इस तरह लिख सकते हैं. ये आपका डेस्कटॉप है और इसमें आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे. यू विल क्रिएट द सब्जेक्ट और आप हेलो और अस्सलामु अलैकुम कहन के आई हैव लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द, इस तरह से आप जो है ईमेल लिखनी शुरू करेंगे.
और ये आपके पास ईमेल का एक स्पेसिमेन मौजूद है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जो लेटर चाहें, जो रिक्वायरमेंट चाहें, एक्टिविटी के तौर पे, क्रिएटिविटी के तौर पे, अपने तौर पे कुछ भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही करें, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। हमारे पास ऑरल कम्युनिकेशन है। इसमें आप इस तरह से जा सकते हैं कि आप नेचर ऑफ जॉब को पूछ सकते हैं, प्लेस, आवर्स ऑफ वर्किंग पूछ सकते हैं, क्वालिफिकेशन पूछ सकते हैं, और कंडीशन ऑफ वर्क पूछ सकते हैं, स्किल्स एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। इस तरह से आप एक इंटरव्यू तैयार कर सकते हैं अपने तौर पे, और ये स्पेसिमन के तौर पे इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं। ऐसे राइटिंग, ईमेल राइटिंग, इंटरव्यू राइटिंग, ये क्रिएटिविटी के तौर पे आपका वर्क है। इसमें आप अपनी पसंद का फील्ड जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, इंटरव्यूज़ ये आपकी ओरल कम्युनिकेशन स्किल में आती है, ईमेल राइटिंग आपकी रिटन स्किल में आती है, और पैराग्राफ राइटिंग आपका 10th क्लास में एक क्वेश्चन भी होता है, ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग। और ये स्पेसिमेन के तौर पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविज़न है। ये इसलिए दिया गया है कि ताकि आप लेसन की मदद से हेल्पिंग मटेरियल उसमें से ले सकें और अंडरस्टैंडिंग लें। और एक और स्पेसिमेन के तौर पे है यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। ये हमारा करंट इशू है कि कितने फ़ायदे होते हैं मोबाइल के और कितने नुकसानात भी होते हैं। नुकसानात में ये है कि ये आँखों के लिए हार्मफुल है, आपका टाइम वेस्टेज है, और फ़ायदे में ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, एजुकेशनल लेटेस्ट व्यूज़ मिलते हैं। जैसे let me begin by saying that the advent of mobile phones has been one of the unique features of modern day information technology, IT techniques and technologies. It has given a new dimension to personal communication, helping people to be in touch with one another during time of sickness, in need, in the family, or an emergency crisis, emerging crisis. On streets, we have become unsafe also due to terror acts like kidnapping of young girls and boys for ransom. ये हमारे पास यूजेस भी हैं और एब्यूजेस भी हैं, हम इनमें मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स देयरफॉर हैव बिकम इंडिस्पेंसिबल। ये अब ज़रूरी हो गया है कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन हो ताकि घर वालों को हमारी लोकेशन पता हो, हमारी सेफ्टी हो। आल्सो फॉर यंग स्कूल and college going boys and girls in life elsewhere, mobile phones have also become one of the key elements of communication for law enforcing and the intelligence agencies. All said and done, however, one cannot overlook some of the typical abuses. अब हम इसके दूसरे एस्पेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो फ़ायदे हैं, ये नुकसानात हैं ऑफ द मोबाइल फ़ोन। दिस इज़ द थिंग कि स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में मोबाइल स्टूडेंट्स को परमिटेड नहीं है। I found it to be heavily misused by our younger generation. I have come across young people talking and gossiping on issues on of no consequences. They often talk throughout the night, leaving their studies. उनको स्टडीज़ का नहीं पता, टाइम वेस्टेज करते हैं और अपना नींद को भी पूरा नहीं करते हैं, जो कि हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। To my mind, mobile phones are also instrumental in causing irreparable damage to morals of our younger generation. Morality उनकी ख़राब होती जा रही है, who often use it at random for reviewing pornography. Of great annoyance is also this business of people talking over mobile phones while crossing roads and driving cars, which is very dangerous. ज़ाहिरी बात है, जब तवज्जो आपकी ड्राइविंग पे मरकूज़ नहीं है रोड को क्रॉस करते हुए, तो डेंजरस है लाइफ के लिए भी और दूसरे की लाइफ के लिए भी, और इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। तो इस तरह से हमने क्रिएटिविटी के तौर पे इन क्वेश्चंस को देखना है। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।